Hello students, welcome to the science class. Today we are going to start a new chapter of chemistry of class 10th, acid, base and salt. In this chapter we will learn about the characteristics of acids, bases and salts, formation of acid, base and salts, and properties of acid, base and salts, and some natural effects of acids, bases and salts and their uses also. So now we are going to start this chapter. The two main sources of substances are animals and plants, minerals and rocks. जो सब्सटेंस में एनिमल्स एंड प्लांट्स से मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. Okay, means the substances obtained from the animals and plants are known as organic substances, and the substance obtained from the minerals and rocks are known as inorganic. Substances. Okay, so there are two types of substances: organic substances and inorganic substances. Initially, on the basis of their taste, the substances divide into three groups: acids, bases and salts. Okay, so compounds. जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने थ्री ग्रुप में डिवाइड कर दिया. सम आर एसिड्स, bases and salts. Acids are sour in taste. Acid जो word है that is came from acidus. Acidus means sour. ठीक है, acidus means होता है sour taste. तो acidus से acid आया जो word है. अब acids और bases and salts थ्री कैटेगरी में हमने डिवाइड किया. So first we will learn about acids. Note down acids. What are acids? डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन है एसिड्स की जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं. आर्हीनियस डेफिनेशन है कि द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स. द सब्सटेंसेस ions in their aqueous solution. The substances which give hydrogen ion in their aqueous solution are called acids. Okay, means acids substance जो एसिड हैं, एसिड्स में अगर वाटर ऐड करेंगे तो ये गिव H प्लस आयन. ठीक है, H प्लस आयन देते हैं व्हेन एसिड्स एडेड टू वाटर. नाउ हाउ द एसिड्स फॉर्म्ड. सो एसिड्स फॉर्म्ड बाय द डिजॉल्विंग non-metallic oxides in water. जो कैसे एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कोई भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. कार्बन एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म करेगा H2CO3. ठीक है,
ये क्या है, कार्बनिक एसिड। तो देखो ये जब नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है देन दे फॉर्म एसिड्स। वन मोर एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये फॉर्म करता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। SO3 H2O से रिएक्शन करता है, देन इट फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 H2O से रिएक्शन करता है, देन इट फॉर्म HNO3 नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। And sulfurous acid. It means the acids are formed by the dissolving non-metallic oxides in water. Here I have written some common acids and their formulas. So hydrochloric acid, its formula is HCl. Sulfuric acid, H2SO4. Nitric acid, HNO3. Phosphoric acid, H3PO4. Carbonic acid, H2CO3. Formic acid, HCOH. It is also known as methanoic acid. And acetic acid, CH3COOH. It is also known as ethanoic acid. So these are some common acids used in daily life. Now, characteristic properties of acids. So what are the characteristic properties of acids? First, if we talk about their taste, then acids are sour in taste. क्या होता है इनका टेस्ट, कैसा होता है, सोर होता है। कोरोसिव नेचर, तो एसिड्स आर corrosive in nature. Means they produces burning sensation. On the skin on which it fall. अगर कोई एसिड है और स्किन पर गिर जाए तो ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. इवन इट दे मेक्स होल इन द क्लोथ्स इफ दे फॉल ऑन देम. सो they have corrosive nature. Now some chemical properties means reactions of acids. So first reaction is reaction of acid with metals. इसके लिए मैंने कोड बनाया है बीकॉम, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ. बी कॉम रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद बेस. इससे इजीली लर्न रहेगा कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम रिमाइंड कर सकते हैं. तो बी कॉम सबसे पहले रिएक्शन विद, लास्ट से स्टार्ट करेंगे एम से. तो रिएक्शन विद मेटल्स, तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, जब मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एसिड प्लस मेटल
they gives salt plus hydrogen gas. So when acids react with metals, they form salt and hydrogen gas. For example, HCl को अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, देन इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, अनदर एग्जांपल H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम सोडियम से करा देते हैं Na से, देन इट विल फॉर्म Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. मीन्स जब भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. ये मेटल इस क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगी और मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगी. यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये SO4 के साथ बॉन्ड बनाएगी सल्फेट आयन के साथ, और ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. सो दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द रिएक्शन ऑफ acids with oxides. एसिड का रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स. तो फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो मेटल के साथ, अब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन. तो जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड्स रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, देन दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जाम्पल एसिड है HCl, अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, देन इट विल फॉर्म CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O. वाटर का फॉर्म सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा. मींस एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, वन मोर एग्जांपल, H2SO4 प्लस MgO, then it will form MgSO4 प्लस H2O. तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा. तो ये मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट, का फॉर्मेशन हुआ है और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन किया एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर. सो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. देखेंगे फर्स्ट जो रिएक्शन थे, जैसे कोई भी एसिड है HCl है, HCl अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो MgCl2 बनाएगा. MgCl2 मीन्स ये Mg ने किसके साथ रिएक्शन किया? क्लोरीन के साथ. ठीक है, Mg ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया. और जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये बच गया और ये इस 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लिया? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लिया. तो इस तरह से जो फर्स्ट रिएक्शन थे, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या है कि ओनली मेटल है
तो ये मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगी और मेटेलिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगी। बट जो सेकंड केस है उसमें HCl का फिर से अगर हम रिएक्शन करें MgO के साथ, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ये अटैक करेगी और इसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी। मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और किसका फॉर्मेशन किया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। और इस बार क्या बचा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। फर्स्ट केस में केवल हाइड्रोजन बचा था, इसलिए हाइड्रोजन लिबरेट हुआ था। इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें बची हैं, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये सेकंड केस है। ठीक है, तो इसलिए जब मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करते हैं, ओनली मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। और एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, देन दे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। और मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। फॉर एग्जांपल HCl की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर अगर एसिड्स मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, देन दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। ओके, तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बोनेट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, HCl reacts with sodium carbonate। तो ये सोडियम ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा NaCl का फॉर्मेशन होगा। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और NaCl का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या बचता है, हाइड्रोजन है और कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ब्रेक होगा CO3 और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर H2O का फॉर्मेशन करेगा और CO2 फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉल्ट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस इज एसिड and sodium carbonate। Okay, one more example, H2SO4 plus NaHCO3, then same Na है तो ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, देन दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। ऑफ एसिड्स विद बेस। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। हम बेस के साथ एसिड्स का रिएक्शन देखेंगे कि क्या फॉर्म होगा। तो एसिड प्लस बेस
then they form salt and water. Means same as the reaction of acids with metal oxides. जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से हुई थी तब भी क्या फॉर्म हुआ था, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ था. सेम हियर एसिड की रिएक्शन जब बेस से होगी तब भी क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा. एग्जाम्पल में HNO3 नाइट्रिक एसिड का मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, देन इट विल फॉर्म MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड H2O, MgOH का होल ट्वाइस, सॉरी ये MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस. ठीक है, ये एसिड नाइट्रिक एसिड है. नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस से कराते हैं, देन इट विल फॉर्म MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, वन मोर एग्जांपल, H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, ये सॉल्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर. इट मीन्स व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. देखो कैल्शियम इस पर अटैक करेगा और ये कैल्शियम क्या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करेगा, और इधर से हाइड्रोजन और इधर से OH आयन, ये H आयन और OH आयन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, H2O का फॉर्मेशन करते हैं. बेस क्या प्रोवाइड करता है, OH आयन प्रोवाइड करता है. बेस प्रोवाइड करता है OH आयन और ये प्रोवाइड करेगा H आयन. दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. इसीलिए जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. ये एसिड्स क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज they give or dissociates into ions. जो एसिड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड दीज आयंस एक्ट एज चार्ज कैरियर्स. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर्स की नीड होती है, और ये जो आयंस फ्री हो जाते हैं ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करते हैं. दैट्स व्हाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. ओके, अच्छा दी अब जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस एंड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब नोट कर लेंगे, यहाँ नोट करता हूँ, दिस रिएक्शन is also known as neutralization reaction.
ठीक है, ये नोट कर लेंगे पॉइंट्स में। बिकॉज एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So in next topic we will learn more about acids। जो एसिड्स के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर।